Good morning. Today we are here to discuss about heredity and evolution. First of all, I would like to tell you about the heredity and inherited traits. जो characteristics पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं हम उसको बोलते हैं हेरिडिटी. ठीक है. So we have seen that the reproductive process give rise to new individuals that are similar. Okay. But you can say that some amount of variation is produced even during asexual reproduction. And the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction. If you observe a field of sugarcane, you will find very little variation among the individual plants क्योंकि वो स्टेम कटिंग से लगाया गया है, सिमिलर होंगे. But in a number of animals, including human beings, which reproduce sexually, you will find quite distinct variations over there. So, accumulation of variations during reproduction, we are going to discuss. Inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and subtle changes in it. Here in this picture, you can see that it is creation of diversity over succeeding generation, and a single parent is involved over here. Now you can see some changes in next generation, and when it reproduces, it produces few more changes. Similarly over here, right, red color cap head you can see over here, then some change over here, some change over here. Similarly in this. So this figure would represent the situation if a single individual reproduces, as happens in asexual reproduction. If one bacterium divides and then the resultant two bacteria divide again, the four individual bacteria generated would be very similar, and there would be only minor differences, as you can see over here in this figure. So this variations or this dissimilarities or minute dissimilarities would be actually due to some small inaccuracies in DNA copying. So these variations due to small inaccuracies in DNA copying. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated because two parents are involved. So depending on the nature of variations, different individuals would have different kinds of advantages. For example, bacteria can withstand heat, will survive better in a heat wave because of the variations. For example, एक पॉन्ड में बैक्टीरिया रह रहे थे, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पॉन्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो ज़्यादातर बैक्टीरिया मर गए, सिर्फ वही सर्वाइव किए जो कोप अप कर रहे थे हाई टेम्परेचर के साथ. So hereditary, the most obvious outcome of the reproductive process, still remains the generation of individual of similar design. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are inherited. So what are inherited traits? Inherited traits वो traits होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं. तो what exactly do we mean by similarities and differences? जैसे बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो सबका सेम है, लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ लोगों के ये फ्री लोब्स होते हैं और कुछ लोगों के ये अटैच्ड एयर लोब्स होते हैं. तो ये पेरेंट्स से जैसे उनको जीन्स मिले वैसे एयर लोब्स उनके हैं. तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आप देख सकते हैं. A child bears all the basic features of a human being, however, it does not look exactly like its parents, and human population show a great deal of variation. अब रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स क्या है, मैंडल का कंट्रीब्यूशन क्या है. तो मैंडल ने एक्सपेरिमेंट किया. तो हेरिडिटी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स से इनहेरिट हो रहे हैं.
और जो डीएनए में है ना। तो हम जो डीएनए हमें मिल रहा है वो पेरेंट्स से मिल रहा है, फादर से और मदर से। तो इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है चाइल्ड को। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए, क्योंकि 2 डीएनए आ रहे हैं, एक मम्मी की साइड से, एक फादर की साइड से। So thus for each trait there will be 2 versions in each child. So what will then the trait seen in the child be? तो मेंडल ने इस पे काम किया। मेंडल ने कहा कौन से ट्रेड अपेयर होते हैं जनरेशन्स में या फर्स्ट जनरेशन में, और मेंडल ने सेलेक्ट किया पी प्लांट का, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। उसको मेंडल को कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स दिखे पी में, जैसे कि आपको राउंड और रिंकल सीड्स दोनों मिल सकते हैं, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स दोनों मिल सकते हैं, वाइट एंड वॉयलेट कलर फ्लावर्स मिल सकते हैं। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। और यहाँ पर जो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने टॉल प्लांट्स को, प्योर टॉल को शॉर्ट प्लांट्स के साथ क्रॉस कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में उन्हें टॉल प्लांट्स मिले। फिर जब ये टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो सेकंड जनरेशन में जो प्लांट्स मिले वो टॉल भी थे और शॉर्ट भी थे, 3:1 में मिले। मतलब 75% टॉल थे और 25% शॉर्ट थे। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, आपके बुक में जो मेंशन है 3, आप उसके बारे में पढ़िएगा। जो डोमिनेंट ट्रेड होता है वो अपेयर होता है फर्स्ट जनरेशन में, जैसे कि इसमें आपने देखा कि 2 टॉल और शॉर्ट प्लांट्स थे, लेकिन सिर्फ टॉल प्लांट्स आ रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में, तो ये डोमिनेंट ट्रेड था। रिसेसिव ट्रेड वो ट्रेड होगा जो कि फर्स्ट जनरेशन में तो अपेयर नहीं हो रहा है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में आ रहा है, जैसे कि शॉर्ट, तो ये रिसेसिव ट्रेड्स हो गया। कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी, उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, होमोजाइगस कंडीशन होती है ये। मेंडल ने क्या किया, जब वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने कहा एक ट्रेट को 2 फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टर उन्होंने टर्म जीन्स के लिए यूज की, उस जमाने में जीन्स का पता नहीं था, तो उन्होंने कैपिटल टी लिया, और इसके रिसेसिव फॉर्म को इसका अपोजिट स्मॉल लेटर ले लिया। तो जो होमोजाइगस होता है, अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट, जैसे या तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो। हेट्रोजाइगस होता है अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर प्रेजेंट, जैसे ये रहा डिसिमिलर जीन्स, ये टी, ये हेट्रोजाइगस है। ये प्योर होमोजाइगस है, ये प्योर होमोजाइगस है, और ये हेट्रोजाइगस है। तो अगर हम जीनोटिपिक रेशो बोलें तो 1:2:1। अगर हम फिनोटिपिक रेशो बोलें तो 3:1। अब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या होती है? फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, टॉल दिख रहे हैं या शॉर्ट, ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, जैसे ये जेनेटिक मेकअप है, ये होमोजाइगस टॉल है, और ये दोनों जो आप देख रहे हैं हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये होमोजाइगस शॉर्ट है। तो ये मेंडल को मिला, ये रेशो मिली, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो मिली। तो मेंडल ने इसी तरह से फ्लावर को लिया, पर्पल फ्लावर लिया, वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स को लिया। जब उनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो फर्स्ट जनरेशन में पर्पल फ्लावर मिले, इसका मतलब पर्पल डोमिनेटिंग है, वाइट रिसेसिव ट्रेड है। और जब इसको सेल्फ पॉलिनेट कराया तो 3:1 मिला, जिसमें 3 पर जो है वो वायलेट थे, 1 जो था वो वाइट था। तो ये 3 जो है ये प्योर वायलेट नहीं है, ये होमोजाइगस होगा, ये हेट्रोजाइगस होगा। तो यहाँ पर अब ये ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक्चुअली डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है प्रोटीन बनने की, ठीक है। जब एक सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन,
एक टुकड़ा डीएनए का जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है एक प्रोटीन के लिए, वो जीन है. सो हाउ डू प्रोटीन control the characteristics that we are discussing here? Tallness, as for example, अगर हम tallness को ले लें तो we know that plants have hormones that can trigger growth. तो plant height जो डिपेंड करती है वो अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन पे डिपेंड करती है जो ग्रोथ हार्मोन है. तो अगर अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन जो है वो बना, वो डिपेंड करेगा कि कितना एफिशिएंटली ये प्रोसेस बना प्रोटीन मेकिंग का. अगर जैसे अगर हम बोलें एंजाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स ही हैं. तो इफ एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली तो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनेंगे और प्लांट टॉल होगा. अगर एंजाइम एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन कम बनेंगे और प्लांट जो है वो शॉर्ट होंगे. ठीक है. तो जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, मतलब जीन इंफॉर्मेशन ला रहे हैं पर्टिकुलर प्रोटीन बनने की. अगर एग्जैक्ट प्रोटीन बन गए तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे, अगर एग्जैक्ट प्रोटीन नहीं बने तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बनेंगे. तो मैंडल के एक्सपेरिमेंट में मैंडल ने कहा कि दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए. ऑफ स्प्रिंग में वो करेक्टर अपेयर होता है जो कि डोमिनेंट होता है और वो करेक्टर अपेयर नहीं होता जो कि रिसेसिव होता है. सो यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस से पहले मैं आपको बता दूं, मैंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया कि द क्रॉस इन विच मैंडल शोड इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव करेक्टर. तो ये उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है कि जब पेरेंट्स हैव प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्रॉस, जब when parents having pure contrasting characters are crossed then only one character expresses. जैसे कि टॉल और शॉर्ट में किया था, तो टॉल एक्सप्रेस कर रहे थे और शॉर्ट नहीं एक्सप्रेस हो रहा था, तो इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं. ठीक है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो थैंक यू वेरी मच.